स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको यहाँ तक बता चुका था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी क्यूब एन। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन हो गया, तो इसको क्या भी लिख सकते हैं, डी क्यूब एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, और इस कॉन्स्टेंट को ही क्या कहेंगे, फ्लो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज और मॉडल का डिस्चार्ज का रेशियो निकालिए। तो हमको ये पता है ये क्या होता है, क्यू अपन डी एन क्यूब कॉन्स्टेंट। तो क्यू अपन डी एन क्यूब फॉर मॉडल इज इक्वल टू क्यू अपन डी एन क्यूब फॉर प्रोटोटाइप। ओके, तो क्यू अपन डी एम इंटू एन एम क्यूब इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन डी पी इंटू एन पी क्यूब। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज एंड फाइनली we get, because dp upon dm is already given as 5, np is equal to 353.5, nm is equal to 1000 rpm, and the ratio of discharge for the prototype as well as model equal to 44.1878 इस तरीके से। ओके, now after the numerical I want to initiate some significance of the model laws of turbine. Here we can see the similarity of model and prototype turbines are based on the assumptions that efficiency of model is equal to that prototype, but the efficiency of prototype is higher than the model efficiency, because जब हमको एफिशिएंसी ज़्यादा अचीव करनी होती है तो क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं। ठीक, उस मॉडल की टेस्टिंग कर लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोटोटाइप जो एग्जिस्टिंग है, और जब मॉडल सक्सेसफुली ऑपरेट करने लगता है तो उसके प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और दिस इज़ नोन एज स्केल इफेक्ट। फॉर टू एस्टेब्लिश अ मॉडल या मॉडल रिलेशनशिप के लिए कितने टाइप के कोएफिशिएंट होते हैं, फर्स्ट वन इज फ्लो कोएफिशिएंट। ऑलरेडी वी नो दैट डिस्चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया इनटू फ्लो वेलोसिटी, एंड actual area into flow velocity is this pi dp into pf, and this is pi d square into vf, and this implies that q is directly proportional to d square under root h. Okay, now here q is directly proportional to d cube n. Now remove the proportionality sign. This implies that q upon n d cube is equal to constant, and this constant is known as flow coefficient. Now next is head coefficient, because cs is equal to this formula, and from this relation we know that under root h is directly proportional to dn. Squaring both sides, after squaring we get h is directly proportional to d square n square. Okay, then h upon d square n square is equal to constant, and this constant is known as head coefficient. Next coefficient is power coefficient. We know that power is directly proportional to discharge into head, and q is directly proportional to nd cube, and h is directly proportional to d square n square. This implies that p will be directly proportional to d to power 5 n cube, and this implies that p upon n cube d to power 5 is equal to constant. This constant is known as coefficient of power. Now some very important points regarding model relationship. For the performance of turbine oblique pump, unit quantities would be in term of net head. जब भी हम यूनिट क्वांटिटी की बात करेंगे तो किसके टर्म में होगा, वो नेट हेड के टर्म में होगा। ठीक, therefore all the parameters should be converted into head. If the unit speed is in term of head, then the speed may be termed as unit speed. If the discharge is termed in the form of head, then discharge may be termed as unit discharge, and same thing will be for power as well as specific speed. Okay, now for मॉडल रिलेशनशिप क्या होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं उसको डायमीटर एन के टर्म में कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि मॉडल रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस होती है किसमें,
कोई भी पंप डिज़ाइन करने के। ठीक, तो इस तरीके से हम कुछ मॉडल रिलेशनशिप के सिग्निफिकेंस के लिए न्यूमेरिकल पढ़ लिए। और यहाँ पे हम फिर से आपको परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन यूनिट क्वांटिटीज़ में फिर से बताते हैं, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ये क्या होता है, एन यू इक्वल टू एन अपन अंडर रूट एच, यू इक्वल टू पाई डी एन बाई 60। तो यहाँ से ये सारे रिलेशंस होते हैं। ठीक, तो इस सबका एक की वर्ड होता है कि वेलोसिटी का रिलेशन कैसे होता है। कैसे हम जान जाते हैं कि अंडर रूट एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टी एन। क्योंकि सबसे पहले जो है, जब नोजल से वाटर निकलता है, नोजल से जेट निकलता है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v1। और v1 इक्वल टू क्या होता है, uv अंडर रूट 2gh। ठीक, तो v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होता है, अंडर रूट h। ठीक, अब जब ये जेट स्ट्राइक करता है किस पे, व्हील पे लगे हुए बकेट पे, तो ये भी रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है। तो इसको फिर इसकी कुछ स्पीड आ जाती है n। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आया, v1, फिर क्या आया, u। ठीक, और फिर क्या आया, रिलेटिव वेलोसिटी। तो v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, और u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पाई डी एन बाई 60। इसका मतलब u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो इसका मतलब अंडर रूट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमेशा किसके होगा, n के होगा, ना कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ सही है। ठीक, अंडर रूट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ओके, और इसी तरीके से मान लो डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज क्या होता है, एक्चुअल एरिया इनटू फ्लो वेलोसिटी। और ये क्या हो जाएगा, मान लो पाई डी बी है, बी और डी को बराबर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर इंटू वी एफ। और वी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑलरेडी अंडर रूट एच के। और इसके लिए अगर हम बात करें तो डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच अपॉन एन। ठीक, तो एक चीज़ हमको पता चल गया, जब हम यूनिट क्वांटिटी लिखते हैं, यूनिट क्वांटिटी, तो ये केवल किसके टर्म में होता है, हेड के टर्म में। ठीक, हेड के टर्म में होता है। और जब मॉडल रिलेशनशिप की बात हम करते हैं, मॉडल रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये किसके टर्म में होगा, ये डायमीटर एंड स्पीड ऑफ द टरबाइन। ओके, जैसा कि हम बोले हैं कि जब सी एच की बात करें तो एच अपॉन डी स्क्वायर एन स्क्वायर कहते हैं। ठीक, इसी सी क्यू की बात करें तो डी एन क्यूब की बात करते हैं, और सी पी की बात करते तो क्यों, पी अपॉन डी टू पावर 5 एन क्यूब की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं डायमीटर स्पीड कॉमन है, बाकी न्यूमरेटर में जो टर्म है उसी का कोएफिशिएंट करते हैं। तो मॉडल रिलेशनशिप में जो टर्म्स होते हैं वो किस में भी होते हैं, वो आपके डायमीटर और स्पीड के टर्म में होते हैं। जबकि यूनिट क्वांटिटी में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हेड के टर्म में होता है। और जब ये हेड जो होता है, हेड की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, यूनिट क्वांटिटी। ठीक, अगर इस वैल्यू यहाँ पे h की वैल्यू 1 हो जाए तो पावर की वैल्यू, ये वाली पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट पावर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से डिस्चार्ज में जब h की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, यूनिट डिस्चार्ज। हेड की वैल्यू 1 हो जाती है, स्पीड की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या हो जाता है, यूनिट स्पीड। ओके, थैंक यू।